غیرت کی بات کی، خود مختاری کی بات کی، اور آج یہ سارے چور اور ڈاکو اور لٹیرے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے فرد جرم عائد ہونا ہے، چور ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، 60% کابینہ ان کا بیٹھا ہوا ہے جو کہ خود ضمانت پہ ہیں، اس کے ساتھ جو ان کا انٹیریئر منسٹر ہے جس کے اوپر 22 افراد کے قتل کا الزام ان کی اپنی جماعت نے لگایا ہے، جس کا ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہاتھ رنگے ہیں، جو کہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ جس کے روابط کے اوپر الزامات ہیں ان کے اوپر، یہ عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے۔ میں وارن کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ عوام میں جانے کے قابل تو نہیں رہیں گے، لیکن جو آپ ایسا سوچنا بھی مت، وہ آگ لگے گی جو کہ کسی کے قابو میں نہیں ہوگی۔ ایک کوشچن کا جواب دے دیں۔ جی، آپ کی بڑی اہم وزارت تھی، آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، اس کے اوپر ذرا بتا دیں۔ دیکھیے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ نمبر ون ہم نے 6118 کلومیٹر کی سڑکوں پہ کام شروع کیا، انہوں نے 2000 بنائے تھے، کام شروع کیا تھا 5 سالوں میں۔ عمران خان کے پہلے 3 سالوں میں جو سڑکیں مکمل ہوئی وہ 2700 کلومیٹر تھی، ان کے پہلے 3 سال میں جو کمپلیٹ ہوئی وہ 576 کلومیٹر تھی۔ عمران خان نے 41 کروڑ فی کلومیٹر وہ ایک سڑک 6 رویہ سڑک بنائی، انہوں نے 17 کروڑ فی کلومیٹر سڑک بنائی، 24 کروڑ ان سے سستی بھی بنائی، 6118 کلومیٹر ان سے 3 گنا زیادہ بھی بنائی، جو پلان کیا وہ ان سے 5 گنا زیادہ پلان بھی کیا، اور اس میں آپ کے سامنے بلوچستان کا آپ کا ساؤتھ بلوچستان کے پیکج، خزدار بسیمہ، جوب کچھ لاکھ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس، کوئٹہ بائی پاس، گلگت سے لے کے چترال شندور، گرم چشمہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حیدرآباد سکر کا تیار تھا، اس کا افتتاح کرنا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خیبر پختونخوا ملتان جو MM روڈ ہے، جو پرانا آپ کا بکر میاوالی یہ سڑک تھا، یہ تمام عمران خان نے شروع کیے تھے، اور 6118 ہم نے بنائے تھے، اور انہوں 200 کی منصوبہ بندی کی تھی، اس کے ساتھ ہم نے 3 گنا ان سے زیادہ بھی بنائے تھے، ان کی تفصیلات بھی آپ کو بتا دی، لیکن یہ امپورٹڈ حکومت ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جو لوگ ان کے لانے والے تھے جو سازشی تھے، یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، قوم کو اس کا پتہ ہے، قوم کا ایک ہی نعرہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پہ بنے مملکت خداداد پاکستان میں کسی کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یہ سارے غلام ہے، بیکاری ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، باہر جائیداد ہے۔ عمران خان اور اس کی قوم پاکستانی قوم خوددار ہے، قومی غیرت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور ان چوروں کے جتنے ہاتھ کنڈے تھے آج آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ 60 روپے فی لیٹر آپ نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا، 47% ایک ہی شام کو، ایک ہی دن میں لوگوں کے اوپر بجلی گرا دی، پھر اس کے ساتھ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، کھانے پینے کی اشیاء ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئی، اور اللہ نہ کرے جس سمت پہ یہ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ سری لنکا جیسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ لوگ خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ان حکمرانوں کے گھروں کے اندر گھسے۔ ان کو ڈرنا چاہیے اس ٹائم سے۔ تھینک یو سر، ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف ایک ٹاپک کے اوپر بات کروں گا۔ پچھلے 5-6 دن سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کیوں بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے گا؟ کہ عمران خان صاحب نے ملک دشمن طاقتوں کا جو پلان ہے اس کو بے نقاب کیا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ 1995 سے امریکن ریسرچ تھنک ٹینک ادارے نے جو ایک تھیسس پیش کیا تھا کہ کس طرح پاکستان کو کہ جو ایک اسلامی ایٹمی ملک ہے اس کو دیوالیہ کر کے کس انداز سے پاکستان کے خلاف جیوگرافیکلی سازش کرنی ہے۔ یہ پچھلے 30 سال سے سینکڑوں کلپس موجود ہیں انٹرنیشنل ٹی وی چینلز پہ، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ سینکڑوں آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں، لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ کون بغاوت کا مقدمہ درج کرنے چلا ہے؟ وہ آصف زرداری، وہ بلاول زرداری، جن کا رائٹ ہینڈ ذوالفقار مرزا نے 2011 کے اندر پریس کانفرنس کر کے قرآن پاک سر پر رکھ کے کہا تھا۔ 2011 میں ذوالفقار مرزا نے، جو آصف زرداری کا ذاتی دوست بھی تھا اور 2008 سے 2013 تک اس کی
सूबाई असम्बली में होम मिनिस्टर भी था, उसने कहा था कुरान पाक सर पर रख के कि जनाब ये आसिफ जरदारी और इल्ताफ हुसैन पाकिस्तान को आलमी ताकतों के और मुल्क दुश्मन ताकतों के कहने पे जो है वो तोड़ना चाहते थे। आइए सर, थोड़ा पीछे हो जाए ना, क्या थोड़ा पीछे हो जाना बेटा, पीछे हो जाए। आइए शाह साहब, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, चलें। ठीक है, आगे ठीक है, चलो कदी कदी। इजाज़त जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था, जिसकी सदारत चेयरमैन इमरान खान साहब ने फरमाई, और 3.5 घंटे का ये तवील इजलास चला, जिस पर मुल्क की सियासी सूरत हाल पर और जो हमारी माशी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया। जो मोटे मोटे कुछ फ़ैसले हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, फ़ैसला किया गया है, जैसे कि आपके इल्म में है, कि पंजाब में जो 20 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से उनमें हिस्सा लेगी। हमारे इल्म में है कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत अपनी इंतज़ामिया और अपनी पुलिस को इस्तेमाल करके नताइज अपनी मनमानी के हासिल करने का एक मंसूबा बना चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इन इलेक्शंस को शफाफ बनाएं, और अगर वो इन ज़िमनी इलेक्शंस को शफाफ बनाने में नाकाम दिखाई दिए तो जनरल इलेक्शन जो होने हैं और अनकरीब होने हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। पार्टी ने फैसला किया है और इमरान खान साहब ने जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके फ़ैसले के लिए उनकी सरबराही में कल 1 बजे पार्लिमानी बोर्ड का इजलास मुनक़िद होगा, ताकि जो टिकट्स हैं उनकी अलॉटमेंट का फ़ैसला किया जा सके। इसके साथ साथ आज एक ये भी फैसला हुआ है कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने मेंबरान कौमी असम्बली को ये खतूत लिखे कि वो कल यानी कि 6 तारीख से 10 जून तक वो असम्बली में पेश हों, अपने इस्तीफ़ों से मुतल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम अपने इस्तीफ़े पेश कर चुके हैं। उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, वो उन्हें कबूल कर चुके हैं, उन्हें नोटिफाई कर चुके हैं, और मज़ीद उनके सामने पेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनांचे पार्टी ने फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। नंबर 3, राना सनाउल्लाह के बयानात आपकी नज़र से गुजरे होंगे, और वो धमकियां और वो गैर सियासी गुफ्तगू पूरी कौम ने सुनी है, और एक इज़्तिराब की कैफियत भी है। वो कह रहे हैं कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी समझती है इससे बड़ी सियासी हिमाकत हो नहीं सकती, और अगर हुकूमत का ये इरादा है और अगर वज़ीर दाखिला के ये इरादे हैं तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ये बावर कराना चाहती है कि उसका एक शदीद रद्द अमल आएगा। और अगर किसी को ख्याल है खामोशी से कौम या तहरीक इंसाफ की तंजीम या कारकुनान उसे बर्दाश्त करेंगे तो वो गलत फहमी में है। एक तरफ कर दें बच्चे को यार, एक तरफ कर दें, तो ये गलत फहमी में है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने
یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے کارکنان جو آج کور کمیٹی کی آواز سن رہے ہیں انہیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ اگر میڈیا کے ذریعے یا ان کو اطلاعات سوشل میڈیا کے ذریعے ملے کہ ایسی حرکت یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کردہ حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو آپ نے اپنا رد عمل فی الفور دینا ہے. آپ کو کوئی میسج کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی واٹس ایپ نہیں آئے گا اور آپ کو کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا. آپ سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی رد عمل پرعمل سیاسی رد عمل آپ کا آئینی قانونی سیاسی استحقاق ہے. چنانچہ آپ ابھی سے اس کے لیے منصوبہ بندی صف بندی کر لیجئے تاکہ اگر ایسی حماقت اور ایسی نادان حرکت یہ غیر سیاسی سوچ رکھنے والی حکومت اگر کرتی ہے تو تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام جو آج مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں وہ اپنا معافی و ضمیر واضح طور پر بیان کر سکیں. اس کے ساتھ کور کمیٹی نے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا اور معاشی صورتحال کے بارے میں ایک تشویش کی لہر ہے جو پورے ملک میں اس وقت دکھائی دے رہی ہے. 60 روپے فی لیٹر تیل کی قیمت میں اضافہ, ڈیزل کی قیمت میں اضافہ, کیروسین آئل کی قیمت میں اضافہ, تقریباً 8 روپے فی یونٹ بجلی کے ٹیرف میں اضافہ, اور 1 جولائی سے یہ نوید سنا دی گئی ہے کہ 45% گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے گا. یہ جو تجربہ کار حکومت آج قوم پر مسلط کی گئی ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں اس مختصر دورانیے میں آج جو گھی ہے وہ 200 روپے سے زیادہ فی کلو اس میں اضافہ ہو چکا ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے آٹا 20 کلو کا تھیلا پنجاب میں جو گندم پیدا کرتا ہے, جہاں کبھی آٹے کی قلت نہیں ہوتی بلکہ وہ بلوچستان کو, خیبر پختونخوا کو, آزاد کشمیر کو سپلائی کرتا ہے گندم, آج پنجاب کی کیفیت یہ ہے کہ 1600 روپیہ 20 کلو کا تھیلا بک رہا ہے. چینی کی قیمت دیکھیں, دالوں کی قیمت دیکھیں, گوشت کی قیمت دیکھیں, یعنی کہ ہر خوردنی چیز بے قابو ہو چکی ہے. اور ان کے اقدامات سے کور کمیٹی کا یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے. اس وقت جو افراط زر ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن یہ جو اقدامات ہیں ان کا امپیکٹ ابھی آنا ہے اور یہ 10 جون کے بجٹ سے پہلے اس کا امپیکٹ آنا ہے. 10 جون کو کیا نئے اقدامات اٹھاتے ہیں اس پر تو بجٹ کی تقریر کے بعد ہی ہم اپنا رد عمل دے سکتے ہیں, لیکن ہمارا یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان کا افراط زر ایک نئی حد کو چھونے والا ہے اور کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ پہنچنے والا ہے. کہیں یہ 25 سے 30% افراط زر کو نہ چھو جائے اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو جو متوسط طبقہ ہے, جو ہمارا مزدور ہے, جو محنت کش طبقہ ہے, اس پر جو کیفیت آج طاری ہے اس پر مزید جو طوفان برپا ہوگا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تحریک انصاف نے ان حالات کو بھانپتے ہوئے ابھی حکومت کی یہ سازشیں جو ہیں ہماری حکومت کے خلاف ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی. ہم نے جو اثر اور جو
इम्पोर्टेंट सर्कल्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पर नज़र रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन में इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत, एंड फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, ये अब अहम अवामिल हैं। और आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में पानी का बहरान है। इस वक्त किसान बेहद परेशान है। बिजली के निर्ख बढ़ गए, ट्यूबवेल चला नहीं सकता, जहां जेर ज़मीन पानी कड़वा है उनका इन्हिसार नहरों पर है, और नहरों की वाराबंदी है जून के महीने में। जून के महीने में कभी आपने वाराबंदी पहले नहीं सुनी। आज का किसान वो बर्दाश्त कर रहा है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए शौकत तरीन साहब ने हमारी हुकूमत को रुखसत होने से पहले ये बता दिया था कि ये जो मनसूबाबंदी हो रही है, ये इकॉनमी जो हमारी रिकवर कर रही थी स्टेबिलिटी के बाद और ग्रोथ की तरफ माइल थी, एक फील गुड फैक्टर आ चुका था, इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी। वो लूमें फैसलाबाद की जो लोहे के भाव बिक रही थी, वो लूमें मुल्तान में जो बंद पड़ी थी वो चलना शुरू हो गई। वो तकले जो बंद थे वो चलना शुरू हो गए, और अरबों की इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर में आ गई। क्यों? कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल किया, हमने उसको बतदरीज कम किया, हमने स्टेबल गैस और बिजली की प्राइसेस दी, हमने आईएमएफ के दबाव के बावजूद निर्ख कम किए, बिजली के भी और तेल के भी। हमने रूस के साथ गुफ्तगू करके 30% ऑयल, गंदम और सस्ती गैस के लिए गुफ्तगू का आगाज़ किया, जो ये हुकूमत सिरे चढ़ाने में कतरा रही है कि कहीं नाराज़गी मोल न लेनी पड़ जाए। तो ये माशी सूरत हाल जो आज है, इससे हम समझते हैं कि पूरा पाकिस्तानी तबका, चाहे वो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो मजदूर तबका है, चाहे वो खुशहाल सनतकार तबका है, अक्रॉस द बोर्ड कोई तबका आज हमें मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा। और हमारी नज़र में इस हुकूमत के जो माशी माहिरीन हैं, इनके पास कोई हल भी नहीं है। ये कन्फ्यूजन का शिकार है। ये एक फ़ैसला सुबह करते हैं, एक शाम करते हैं, एक कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। और इन हालात में मईशत जो है, और मईशत की हालत बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, और ये इतने बड़े फैसले जो कर रहे हैं और आवाम पर महंगाई का जो बम गिरा रहे हैं, सियासी तौर पर ये इसके इस्तेकाक इनका नहीं है। इसके साथ साथ ये भी फैसला और ये भी डिस्कशन हुई कि आज हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खामोश दिखाई दे रहे हैं। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे अमन के हसूल के लिए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, तो इन्होंने बड़ी तनकीद की थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बहुत जुमले कसे गए थे, और बहुत से आपने देखा इदारिये छपे, बहुत सी गुफ्तगू हुई, आर्टिकल्स आए। आज यही हुकूमत वही मुज़ाकरात, वही वफूद काबुल भेज रही है, गुफ्तगू कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के वज़ीर आज़म का, वज़ीर ख़ारजा का आज क्या मौक़िफ़ है? हिज़्ब इख्तिलाफ़ में उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, आज उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की है या एतराफ़ किया है कि जो रास्ता अपनाया जा रहा था उसमें मुल्क की फलाह और बेहतरी दरकार थी। इसके साथ साथ ये भी सामने बात आई है कि 25 तारीख को पुलिस ने जिस तरीके से तशद्दुद किया हमारी ख़वातीन पर, जिस तरह हमारे घरों की दीवारों को फांगा, हमारी बहू बेटियों को परेशान किया, जिस तरह टेयर गैसिंग की गई, जिस तरह शेलिंग हुई, लाठियों का, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ, इसकी तारीख में माजी करीब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। किसी सियासी हुकूमत में
हमने ये रूप पहले नहीं देखा कि कोई सियासी हुकूमत इस किस्म की हट धर्मी का और गैर सियासी अमल का वो मुजाहिरा करे। हमने फैसला किया है कि वो पुलिस अफसरान जिन्होंने ये कार्रवाई की है, तशद्दुद किया है, हम ना सिर्फ उनकी निशानदेही करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ केसेस रजिस्टर करवाएंगे। जैसे कि लाहौर में अदालत ने, सेशन कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और केस की रजिस्ट्रेशन का CCPO पे DIG ऑपरेशंस पर उन्होंने फ़ैसला किया है। इसी तरह दीगर अजला में हमें बताया जाए, हम अपने कारकुनान से, तंजीम से पूछ रहे हैं, जिस जिस थाने के SHO ने उनके घरों में जाकर उनके दरवाजे तोड़े, उनकी दहलीज फलांगी और तशद्दुद किया बिला वजह पुरअमन लोगों को जो रात को सो रहे थे पुरअमन तरीके से, कोई नुक्स अमन का सवाल नहीं था, कोई कानून शिकनी नहीं की गई, उनकी निशानदेही करें ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये भी फैसला हुआ है कि जो हमारी सेनेट की प्रिविलेजेस कमेटी है, जो हमारे जो इंटीरियर की कमेटी है, उसमें हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान सेनेट जो हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे और IG इस्लामाबाद और इन दीगर अफसरों को पेश होने का मुतालबा करेंगे और सामने उन्हें पूछेंगे। इसी तरह पंजाब असेंबली की जो कमेटी है और जो हमारे स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनसे भी कोर कमेटी ये तवक्को कर रही है कि वो पंजाब के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, IG पंजाब बिलखुसूस, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और उनके और अहलकार, जिनकी नाक के नीचे ये तशद्दुद, ये कंटेनर्स, ये शेलिंग, ये जुल्म, ये बर्बरियत हुई, उनको बुलाएं और असेंबली के सामने पेश करें और इनको जवाबदेह ठहराएं। जमहूरियत में यही होता है, दे आर आंसरेबल टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। और हम चाहते हैं कि कोर कमेटी ने ये इजहार किया है कि इनकी जो ब्रूटैलिटी है उसको बेनकाब किया जाए। ये भी फैसला किया गया कि हमारी जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो तशद्दुद हुआ ख़वातीन पर बिलखुसूस, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे, उनका वो मुजाहरा करेंगी, जगह का इंतखाब का वो फैसला करेंगे आपस में मशावरत से। और हमारी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सेनेट और प्रोविंशियल असेंबलीज वो फैसला करेंगे इस्लामाबाद या रावलपिंडी में कहाँ उसका मुजाहरा करना है, ताकि जो रेंजर्स ने किया आउट ऑफ द वे जाकर उसको भी कॉग्निजेंस में लाया जाए और ख़वातीन पर बिलखुसूस जो कुछ हुआ उसका नोटिस लेना चाहिए। ये भी फैसला हुआ कि जो सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था, जिसमें साइफर के बारे में जो सियासी मदाखलत हुई और उसके बारे में जो अहकामात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दिए, जिसके तहत डिमाश किया गया, उसके बारे में सवाल उठाएं कि जब ये हो रहा था तो हम खामोश क्यों थे। जब पाकिस्तान के मामलात में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का वाज़े एतराफ़ कर लिया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया, तो उसके बाद ये खामोशी अख्तियार क्यों की गई। पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ों को उस पर यकीनन नोटिस लेना चाहिए था। ये भी फैसला किया गया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी मुतहर्रिक किया जाए और वो अपने अपने दारुल खिलाफों में इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, डेमोन्स्ट्रेशंस करें, जिनको हमने राइट ऑफ वोट दिया था और इन हुक्मरानों ने वो सलब किया है, कानून साजी के ज़रिए हक तलफी की है, वो एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराएं और जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की गई हैं उनके ख़िलाफ़। और हम एक कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं और वो कंटेंट उनकी खिदमत में जो वहाँ की एसोसिएशंस हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़, हम उनको पेश करेंगे ताकि वो वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं डेमोक्रेसीज़ में उस कंटेंट को उनसे शेयर करें कि ये जो कैफियत आज इस सरकार ने
जो बर्पा कर रखी है, ये किसी सिविलाइज सोसाइटी क्या इसकी इजाज़त देती है? कोई डेमोक्रेटिक माशरा इसकी इजाज़त देता है? क्या इसकी कोई गुंजाइश उसमें मौजूद है? अगर नहीं है तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? और आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम मीडिया के उन चैनल्स के शुक्रगुजार हैं जो अपनी सवाबदीद के मुताबिक दयानतदारी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, लेकिन हम उनका एहतराम करते हैं। हम फिर भी उनके शुक्रगुजार हैं कि वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उनका किरदार कौम को हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। लेकिन हमें ये कहना पड़ रहा है कि कुछ चैनल हैं जो बिला वजह डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, उनके ज़हनों को मुतासर करते हैं। उस चीज़ को सामने रखते हुए आज पार्टी ने फैसला किया है, समा जो टेलीविज़न चैनल है उसकी जो एक डिज़ाइंड कैंपेन चल रही है, बावजूद क्योंकि उनकी जो ओनरशिप है, उनका हुकूमत के ख़िलाफ़ एक कहा हुआ एजेंडा है, वो इजहार कर चुके हैं कि उन्होंने PMLN का साथ भी देना है और दिया भी है और PTI को ज़ेर करना है। तो फिर उनकी न्यूट्रलिटी, जब एक न्यूट्रलिटी पे सवालिया निशान आ जाए तो फिर PTI ने फैसला किया है कि वो उस चैनल को बाइकआउट करेगी और PTI का कोई नुमाइंदा अब समा के किसी टॉक शो में और प्रोग्राम में शामिल नहीं होगा। थैंक यू जी। सॉरी, हाँ, एक शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, शुक्रिया। आपने निशानदेही कर दी। पार्टी में एक और पॉइंट आज उठाया गया और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका। दो चीज़ें हैं जिस पर बहुत पार्टी के लोगों ने इजहार राय किया। एक, जो नई डिलिमिटेशन की गई है और हम समझते हैं कि वो कोई ख़ास अंदाज में हलकों को जो है वो तोड़ा गया है। किसकी मशावरत से, किसकी ईमा पर, किसके इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये नई मनसूबाबंदी की जा रही है और अगले इलेक्शन के नताइज अपनी पसंद के हासिल करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है, जबकि नया सेंसस नहीं हुआ। तो हमने फैसला किया है कि हम इसको भी इन प्रिंसिपल चैलेंज करेंगे। और दूसरा, जो वोटर्स हैं जो अरसा दराज से एक जगह पे मुकीम हैं, उनका परमानेंट एड्रेस है, 2013 में 18 में उनके इलेक्टोरल रोल में उनके वोट रजिस्टर्ड थे एक ख़ास जगह पर, उनकी बहुत बड़ी तादाद को अपरूट किया गया और मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में फेंका गया। बिलखुसूस इन 20 हलकों में जहां ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, वहां वो पैटर्न को देखते हुए PTI के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ हैं और नून की वीकनेसेस कहाँ हैं, तो ये वोटर की जो कहते हैं ना जेरीमेंडरिंग, ये जो की गई है, इस पर भी पार्टी ने इसका नोटिस लिया है और हम दरख्वास्त कर रहे हैं, चेयरमैन ने दरख्वास्त की है पाकिस्तान की आवाम से और बिलखुसूस PTI के कारकुनान से, MNS से, MPS से, कि वो 8300 पर जाएं और चेक करें कि उनका वोट जहां था वहीं मौजूद है या उसको उठाकर किसी और लोकेलिटी में फेंक दिया गया है, जहां वो रहते हैं वहां से कहीं और उनको मुंतकिल कर दिया गया है, और क्या ये प्री पोल रिगिंग का कोई हिस्सा है। तो फिल फॉर इसका नोटिस लें और उसका तदारुक करें, और अगर ऐसा हुआ है उसकी निशानदेही भी करें और उसकी इस्लाह के लिए वो
इलेक्शन कमीशन का जो कागजी कार्रवाई है उसको भी अमल में लेकर आएँ। लगाया जा रहा है खासकर इमरान खान साहब पे कि जनरल आसिम मुनीर को जिस तरह हटाया गया तो उसी तरह उनकी जो गुफ्तगू उन्होंने जिस तरह बताया कि इमरान खान की अहलिया मलिक रियाज से हार या कुछ हीरे लेने के चक्कर में इन माल में तो आज एक आप थोड़ा अपना तारुफ करा देंगे भाईजान। GTV से हूँ हैदर शराफी। अच्छा, तो ये आज एक ऑडियो भी लीक हुई है जिसमें उसी का जिक्र है, तो क्या ये इल्जामात कनेक्शन एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्या दुरुस्त है ये? इसकी पहले भी तरदीद कर चुके हैं, ये हकाइक के मुनाफी है। और जिस ऑडियो का आप हवाला दे रहे हैं उस ऑडियो से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक़ है, ना ही उस ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ज़िम्मेदार शामिल है। जो लोग शामिल हैं आप उनसे पूछें। एक बाप बेटी की सुन लें मैं बता रहा हूँ। एक बाप बेटी की गुफ्तगू को जो है वो आप हमारे साथ मुंसलिक ना करें, हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। जी, उस पर जो कुछ पहले मरने में हुआ उसका जायज़ा लिया गया और हमारी आज एक हैरान कुन इंकशाफ सामने आया है कि शेलिंग और टेयर केसिंग तो अपनी जगह, हमें इतलात मिली है कि गर्मी की शिद्दत तो आपको पता ही है, मई जून का महीना है और गर्मी अपने अरूज पे होती है। 250 हमें हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे जो काफिलों में लोग आए थे 250 ऐसे लोग हैं, ख़वातीन और हज़रात, जो हीट स्ट्रोक से मुताज़िर हुए हैं इस गर्मी की शिद्दत की वजह से। हमने सारी चीज़ों को जायज़ा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट के रुजू को सामने रखते हुए हम अपना फ़ैसला करेंगे। देखिए, कौमी डायलॉग की उन्होंने, हम तो इस हुकूमत को मुसल्लत करदा हुकूमत समझते हैं। हम समझते हैं कि ये लेजिटिमेट हुकूमत ही नहीं है। हाँ, हम डायलॉग के हामी हैं, हम डायलॉग के कायल हैं। सियासतदान डायलॉग से कभी नहीं इज्तनाब करता, कभी नहीं कतराता, लेकिन किससे? जिनके पास मैंडेट होता है उनसे डायलॉग किया जाता है। जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे डायलॉग क्या किया जाता है? जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की क्या गुफ्तगू हो सकती है? ये देखिए, मैंने तो देखी नहीं है और फ़ारूक हबीब साहब ने उस पर वाज़ेह जवाब दे दिया है। अब मैं समझता हूँ कि मज़ीद उस पर कोई गुफ्तगू की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता। शुक्रिया, थैंक यू जी। आखिरी सवाल। हाँ, अच्छा, पहली बात तो ये है, तो ये इतने लाचार क्यों हैं? हाँ, इनके हाथ इतने बंधे हुए क्यों हैं कि ये वॉकर में चलते हैं? अगर उनको हमारा किया हुआ मुआहदा अच्छा नहीं लगा तो डट के IMF से आंखों में आंखें डालकर बात करते कि हमें ये नहीं मंजूर, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। ये इतने लाचार, बेबस और नामुराद क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये अपनी नाकामियां जो आज आवाम पर इन्होंने बोझ डाला है, ये हम पर डालना चाहते हैं। भाई, तुम हुकूमत वक्त हो और तुमने अभी स्टाफ लेवल टॉक्स करनी है और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अभी उसकी मंजूरी देनी है। आप कह दो कि ये हमारी इकॉनमी के लिए मुनासिब नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। आपने किसने रोका है आपको? और जो नैब, एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, एक और बात, नैब अमेंडमेंट्स पे जरा। नैब का जो कानून में जो इनने अमेंडमेंट्स की हैं, हम समझते हैं वो सेल्फ सेंट्रिक हैं। वो एक ख़ास एलीट के तबके को, ख़ास हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के केसेस को एक तरफ धकेलने के लिए और उन पर मट्टी डालने के लिए एक कोशिश है। NRO2 है जी। और ये NRO2 है, आप सही फरमा रहे हैं। ये NRO2 वो है जो हमसे मांगते थे जब फैटिव की लेजिस्लेशन के लिए स्पीकर हाउस पे हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे
اور جو 35 امینڈمنٹس ان نے ہمیں پیش کی تھی جس پر ہم نے انکار کیا تھا، ہم نے کہا تھا پھر تو اس ادارے کو ہی بند کر دو، تو انہوں نے 24 امینڈمنٹس کے ذریعے اب در حقیقت اس ادارے کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان امینڈمنٹس کے بعد میں سمجھتا ہوں اب نیب کی نہ ضرورت ہے اور نہ یہ فعال ادارہ رہا ہے، یہ اینٹی کرپشن پنجاب ڈپارٹمنٹ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ کیسز ختم کروا رہے ہیں جی لے چکے ہیں۔ بھائی جان اس کے بارے میں پہلے بھی حماد اظہر صاحب کہہ چکے ہیں اور یہ بات ہماری آگے بڑھ چکی تھی، اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، اور ٹھیک گورنمنٹ ہے؟ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں، وزیر خزانہ اگر ان کو اس پہ سوالیہ نشان لگتا ہے تو ہماری حکومت آنے دیں اور دیکھیے ہم کیا حاصل کرتے ہیں۔ چھوڑ تھینک یو۔ وعلیکم السلام۔ تو وہ سویلین بالادستی ہو گئی ہے نا۔ ہم انتظار کر رہے ہیں، کال آئے گی تو ہم آئیں گے۔